Then next topic is demand curve. Demand curve is a graphical representation of demand schedule. So demand curve, we just I taught you demand schedule. With the help of demand curve, shows the graphical representation of a demand schedule. It represented the local of all points, showing different quantities of a commodity which is a consumer is willing to purchase at different level of price during a particular period of time, assuming that there is no change in other factor. So in demand curve, all things are same. Customer buying their commodities according to different price level in a particular period of time, but only in demand curve these all calculations just shows in a graphical representations. Okay, just in features of a demand curve, inverse relationship. It shows inverse relationship between the quantity demanded of a commodity which its price taking other factors unchanged. In inverse relationship, we always it is always shows the relationship between the quantity demanded, कितनी quantity की demand है of a commodity with its price, और उसका particular product का price क्या है, taking other factors unchanged. जो अदर फैक्टर्स होंगे वो अनचेंज होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. सिर्फ जो चेंजेस होंगे सिर्फ क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी होंगी और उसका प्राइस होगा. तो जस्ट मैं बार बार इस चीज़ को पढ़ा रही हूँ कि पर्टिकुलर जो कस्टमर की डिमांड होती है कमोडिटीज़ की वो डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइजेस में होती है इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो सिर्फ ये दो चीज़ें चेंज होंगी, दैट इज़ अ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और जो अदर फैक्टर्स है वो अनचेंज्ड होंगे. इस मीन्स ये कांस्टेंट रहेंगे. Then second is a graphical representation. It can be drawn of for any commodity, plotting each combination of demand schedule on a graph paper. तो जो भी प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी है हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे. देन टू टाइप्स, दैट इज़ द फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकंड इज अ मार्केट कर्व. तो in the individual demand curve there is a two type, individual demand curve and second is a market demand curve. So market demand curve is a graphical representation of market demand schedule. It is obtained by horizontal summation of individual demand curve. Market demand curve is a flatter than individual demand curve. The reason of it that is due of price changes, proportional changes in market demand in more than proportion change in individual demand. So in market demand curve we always shows in graphical representation and it is obtained in a जो होगा वो horizontal होगा. Then of individual demand market curve is flatter than individual demand curve. The reason of it that due of price changes, ये always flatter होगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ इसका reason is कि इसमें जो भी प्राइजेस चेंजेस होंगे इज अकॉर्डिंग इन द स्टडी ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड. नॉट मीन्स हम टोटल जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनकी हम यहाँ पे स्टडीज़ करेंगे, ना कि इंडिविजुअल कस्टमर्स की. ओके, एंड मोर देन एंड जो भी चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे दैट इज़ अ प्राइस चेंज प्रोपोर्शनेट चेंज इन द मार्केट डिमांड. क्या डिमांड मार्केट डिमांड में क्या क्या कैसे चेंजेस, टोटल चेंजेस कितने आ रहे हैं इज़ मोर दैन द प्रोपोर्शनल चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड. तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे दैट इज़ अ प्रोपोर्शनल चेंज इन मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड में कितना कितने हिस्सों में चेंजेस आ रहा है इज़ मोर दैन प्रोपोर्शनल चेंजेस इन इंडिविजुअल डिमांड. और इंडिविजुअल डिमांड के जो है उसमें कितना चेंजेस आया था इसकी हम स्टडी मार्केट डिमांड कर्व में पढ़ेंगे. Slope of demand curve second is when the change in variable on the y-axis are divided by the change in the variable of x-axis. We know कि जब भी हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो 2 पॉइंट्स आते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट इज y-axis एंड सेकंड इज द x-axis.
So thus the slope of curve equal to the change in price divided by the change in quantity. So in the formula, slope of demand curve is change in price and divided by change in क्वांटिटी. अगर हम चेंज इन प्राइस डिवाइडेड चेंज इन क्वांटिटी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. सो हैज इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. द डिमांड कर्व स्लोस डाउनवर्ड्स. तो जो डिमांड कर्व होगा हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा, मीन्स नीचे ऊपर से नीचे आएगा. सो हैंस स्लोप इज नेगेटिव. आखिर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा. Slope of the demand curve measure the flatness of or steepness of a demand curve. So it is based on the absolute changes in price and quantity. आखिर जब भी हम स्टडी करेंगे डिमांड कर्व की, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की, तो हमारे पास जो भी आंसर्स होंगे कैसे होंगे, एब्सोल्यूट होंगे, और एब्सोल्यूट होंगे अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्शन. इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इन विच वैन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 8 to 4. यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि प्राइस जब चेंज होते हैं, आखिर दैट इज़ अ बनाना प्राइस पहले कितना 8 था, उसके बाद प्राइस कितना हुआ 2 हुआ, तो द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4. आखिर हमने 8 रुपीज़ का जब 8 रुपीज़ दर्जन बनाना थे तो उसकी डिमांड कितनी थी 2, और जब प्राइस ऑफ बनाना का ₹4 थे तो उसकी क्वांटिटी कितनी हुई, डिमांड कितनी हुई पर्टिकुलर बनाना की, दैट इज़ 4. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल, जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम है, और जैसे ही प्राइस डाउन होता है तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या होती है, उसकी इंक्रीज होती है. तो हमने जैसे फॉर्मूला देखा, दैट इज़ चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. सो चेंज इन प्राइस मीन्स दैट इज़ 4 minus 8 and change in quantity that is 4 minus 2. तो यहाँ पे कितना होगा, जब माइनस करेंगे तो 4 minus 8 इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइड हम जब कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, -2. ओके, देन सेकंड इज